Today we are going to discuss about employment opportunities. Employment basically, what is employment? Employment is the state of having paid work. जिस चीज़ के जिस काम करने के पैसे लिए जाते हैं या जो काम ऑन पेमेंट हो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सैलरी और वेजेस ऑन द कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग some services. Rural employment in Pakistan is based upon on farm and off farm activities. Pakistan, as you know, is predominantly a rural subsistence country. The vast majority of the population lives in rural areas and engaged in agriculture sector, directly or indirectly. In term of employment, majority of the labor supply is in rural employment. A huge amount of Pakistan's productive resources, that is labor, land, and other natural resources, are located in rural areas and are still unused or underutilized. कि वो सारे जो रिसोर्सेज हैं जो बेसिकली हमारे रूरल एरियाज में हैं वो या तो ज़्यादातर अनयूज्ड हैं और या ज़्यादातर अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही. टैपिंग इनटू दीज रिसोर्सेज एंड ड्राइंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूज is the key to unlocking sustainable, broad development, broad based economic growth and development of the country. In short, we can say the rural economy is very important for the development of any country. There are differences in the nature of employment opportunity on the basis of the areas and the basis of the regions. The employment opportunity are acquired by the individual on the basis of a number of factors. उन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट होती है या वो एम्प्लॉयमेंट ले रहा है. तो उसमें एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, उनके क्वालिफिकेशन फैक्टर हैं, स्किल बेस्ड फैक्टर्स हैं, एबिलिटीज़ उनको कौन कौन सी हैं वो फैक्टर्स हैं. लोकेशन बड़ा मैटर करती है कि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका रेजिडेंस लोकेशन क्या है, एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं. एवरी इंडिविजुअल एस्पायर्स to obtain employment opportunities. There are two main reasons behind this. The first one is it enables the individual to generate income which would help them in subsistence of their living condition. Second is the individual are able to make use of their qualification, skills, abilities. In rural communities, the individuals are mostly residing in the condition of poverty and backwardness, as you all know. They either possess low educational skills or no educational skills at all. They are also unaware in terms of various areas, in terms of various opportunities. Due to these factors, the rural individuals are mostly engaged in low paid jobs. The primary sector of promoting employment opportunities among them is only agriculture sector. Apart from agriculture and farming practices, they are involved in production of handicrafts, food item, pottery making, silk weaving, animal husbandry, and so on. Rural individuals are migrating to urban areas for acquiring the job opportunities. With the advent of modernization and globalization within the country, there have been transformation and advancement taking place in all areas and in all fields. But apart from these advancements, the individuals are experiencing severe problem of illiteracy, unemployment, and homelessness. The primary aim of rural individual is to obtain good and well-paid employment opportunities, either in agriculture sector or off-farm jobs. Obtaining employment opportunities would enable them to sustain their living condition in an appropriate manner.
The rural individuals are engaged in number of employment opportunities, जिनमें से कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स भी हैं, कुछ वाइट कॉलर जॉब भी हैं, जिनमें वो engage होते हैं. It is vital for the individual to enhance their skill, enhance their education, enhance their ability, और अपनी एजुकेशन को बेहतर करके वो एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब अटेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ हम डिफरेंट टाइप्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इन रूरल एरियाज़ के लोग जिन अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं, उनमें सबसे मेजर फैक्टर आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर. तो रूरल कम्युनिटी जो ज़्यादातर एंगेज है, जहाँ पे ज़्यादातर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है. एग्रीकल्चर इज़ रिगार्डेड एज अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ the rural individuals. Skills and information in terms of the different method of production and cultivation. तो उस सेक्टर, चूंकि वो मेजर सेक्टर है, इसीलिए उस सेक्टर में रहते हुए उनमें उस एग्रीकल्चर सेक्टर की स्किल्स, मेथड ऑफ कल्टीवेशन और इस तरह की सारी चीज़ें बेहतर हैं एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स. उसके बाद एजुकेशन सेक्टर है. तो रूरल कम्युनिटी, जो रूरल इंडिविजुअल्स हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वॉल्व हैं. इन रूरल एरिया देयर हैव बीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स. तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रायोरिटी इस चीज़ को दी जाती है कि अगर एक रूरल एरियाज़ में, फॉर फ्लैंग एरिया में कुछ स्कूल है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई वोकेशनल सेंटर है, तो वहाँ पे लोकल बंदे को हायर किया जाए ताकि वहाँ पे एब्सेंटिज्म का मसला हल हो जाए, उसकी रेगुलरिटी को प्रॉपर चेक किया जा सके, और अगर टीचर उस प्रॉपर लोकल एरिया का होगा तो जो स्टूडेंट की इनरोलमेंट है स्कूल में वो भी ज़्यादा हो सकेगी. इसलिए रूरल एरियाज़ के लोग एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वॉल्व हैं और उसमें डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन सब चीज़ों में. फिर हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेक्टर. हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेक्टर में भी इसी तरह प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर उस एरिया का बंदा है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी पोस्टिंग उस एरिया के रूरल हेल्थ सेंटर में या बेसिक हेल्थ यूनिट में की जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि अगर एक शहर से बंदा दूर दराज के रूरल एरिया में जाके जॉब कर रहा है. फिर प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में रूरल कम्युनिटी इन्वॉल्व है. तो प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड फूड आइटम्स में रूरल कम्युनिटी इन्वॉल्व है. जो आप एग्रीकल्चर से आउटपुट लेते हैं उसको फिर प्रोड्यूस करके उसकी सेलिंग होती है, उसकी फिर मार्केटिंग की जाती है, उसमें इन्वॉल्व है. फिर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज है. जो आप देखते हैं कि शहरों से बाहर अगर फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रीज जो लगाई जा रही हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ के नियर अबाउट जो कम्युनिटी है उनकी इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा किया जाता है कि वो उनकी आने जाने में आसानी रहे और उनको वो लेबर, लो पेड लेबर मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाता है उससे, और बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट्स उसमें मिलते हैं. इसलिए जो लोकेटेड एरिया की फैक्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जॉब्स अवेलेबिलिटी है उनकी. फिर कल्चरल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप देखते हैं कि कल्चर में हमारा जो रूरल एरिया है वो बहुत रिच है. हमारे कल्चर में जो हमारी लेगेसी है उसको लेके चलने में, हमारे जो हिस्ट्री है उसको आगे लेके चलने में, कल्चर को हमारे को सेव रखने में रूरल कम्युनिटी का, रूरल एरियाज़ का बहुत बड़ा हाथ है उसमें. तो जो रूरल एरियाज़ की कम्युनिटी है वो कल्चरल परफॉर्मेंसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस करवाई जाती हैं तो उस जॉब्स में भी रूरल एरियाज़ के लोग, उनमें स्किल्स होती है उस पर्टिकुलर कल्चर. फिर रेस्टोरेंट एंड टी स्टॉल्स की बात करें तो रूरल कम्युनिटी रेस्टोरेंट्स एंड टी स्टॉल्स में भी एंगेज होते हैं, और ये ज़्यादातर लोग जो हैं ये पार्ट टाइम जॉब, या अगर आप कोई एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं या किसी एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में जॉब है, तो वहाँ पे उसके साथ-साथ ये बिज़नेस भी चलाया जाता है. फिर रिपेयरिंग मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये भी रूरल एरियाज़ के लोग, कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी जो रिपेयरिंग शॉप्स हैं, वो भी उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप की जाती है. फिर वोकेशनल ऑक्यूपेशंस हैं. वोकेशनल ऑक्यूपेशंस में जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, लाइव स्टॉक से रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, स्विमिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो वो भी उन वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हमारी रूरल जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है.